everyone, greetings for the day. I'm Priyanjali from All About Skin Wellbeing. I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important for more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. A fungal infection is very common on your skin or nails. Fungal infection or mycosis are diseases caused by fungus, yeast, or mold. Mild fungal infection can look like a rash, can be itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Shaila Agarwal is a dermatologist, cosmetologist, trichologist based in Delhi with more than 25 years of experience in the field. She completed her MBBS and MD in dermatology, venerology, and leprosy from Maulana Azad Medical College, MAMC, New Delhi. She is the director and consultant dermatologist at Mehak, the Derma and Surgery Clinic, Sargodha Enclave, South Delhi. And today we have her with us on the screen. A very warm welcome to you, Doctor. Without further ado, let's dive into the topic. We are going to talk about fungal management today. So, Doctor, tell us what is this fungal infection that we are talking about? Thank you for having me here. And the moment the rains start, the fungal infection becomes a very important part of our health. It's not about skin, it's about your general health. Fungus is part of our normal flora. And because we stay in a tropical climate where there is humidity, and especially in this weather, so fungal infection becomes a very important part of our day to day health. And the problem is that everybody knows about fungal infection. Everybody is aware. The moment you start seeing the advertisements of the on TV, you realize that the rains are here and the fungal infection is going to be around, but somehow or the other nobody takes it seriously for it to be cured. It's almost becomes a SOS kind of a thing. Okay, something happens, there is a rash, there is redness, there is itching, you go to your local chemist, you buy a tube, you apply it, it becomes okay, then it comes back again. So fungal infection is something which is becoming a problem not only for the patients but for the doctors also, because of this untreated fungi which are there, and then they are becoming more resistant to the medicines we have. Right, right. Now, doctor, identifying a condition is a big, big thing. So, how Yeah. does the initial stage look like? What are the early symptoms? The first symptom is everybody knows about Daat, Khaj, and Khujli. So it starts with Khujli, which is itching. The areas are more irritable. And normally the thing starts, the fungal infection, the most common one is in the body folds. So it will be your underarms, your groin, or in between your feet. You'll find that the feet is becoming like there is a redness in between the feet, and then there is itching. It is not going. So the first symptom is itching, then you start seeing the redness, and after that you see that there are ring like structures. That's why it's called ringworm. There is no worm over there, but somehow the other the colloquial name is ringworm. So most of the people, everybody, once they see it, they know that it is a fungal infection, but they don't know it is a disease. So they think that if we apply an ointment it will be settled and then they can just move on, but that is not the case, because the problem is that the fungus is becoming a big problem and it is spreading all over the body. So if you have irritation and fungus, then you have to take care of that. Right, right. Moving ahead. Doctor, what are the different parts of the body which are susceptible to having fungal infection? From head to toe. You can Right. get fungal infection anywhere. So it starts with the corporis. The tinea. Tinea is the scientific name. Tinea is the name of the dermatophyte. Dermatophyte are the fungi. जो हम scientific name लेंगे वो dermatophyte होगा. Tinea is जब हम describe करेंगे कि वो कहाँ हो रहा है. So it can start from tinea corporis, जो ज्यादातर बच्चों में होता है. Fortunately, adults don't have the head tinea. Then there is tinea fasciae. Then there is tinea corporis, means all over the body. Then you have tinea Mm-hmm. axillaris, axilla में है. तो basically the infection is tinea. So वो सर से लेके पैर तक कहीं भी हो सकता है. ज्यादातर लोगों को शुरू वो बॉडी फोल्ड से होता है. माने जब कोई मेरे पास आता है और उसके फेस पे मुझे टीनिया नजर आ रहा होता है, तो देन आई से कि यू आर सफरिंग फ्रॉम इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम and you must be having it inside also. It's not only that you can have it on the face, it will not start from the face itself. So tinea is Okay. something
which can appear anywhere, and it can be it's present anywhere in the body, but the first symptom you will see is in the body folds. राइट राइट। तो डॉक्टर ये कुछ इंटरनल कंडीशन भी हो सकता है कि ये नहीं एक्सटर्नली ही पाया नहीं, जाता है नॉर्मली? इंटरनल नहीं है, इंटरनल नहीं है। ये जो फंगस है, दिस थ्राइव्स ऑन द एपिडर्मिस। तो जो हमारी स्किन की ऊपर की लेयर्स हैं उसमें ये फंगस रहता है। लेकिन प्रियांजलि, बात ये है कि ऊपर का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ पर है। द एपिडर्मिस इज 10 लेयर थिक। तो ऊपर की जो Right. लेयर्स हैं स्किन की, दे आर डेड सेल्स। यू नो, स्किन की आपको एक तरीका पता होना चाहिए। स्किन रोज झड़ रही है, स्किन के सेल्स नीचे से ऊपर आते हैं। नीचे जो 10th लेयर है, दैट इज द लाइव लेयर, उससे वो धीरे धीरे डेड होते हुए ऊपर आते हैं, निकल जाते हैं। तो स्किन के जो 10th लेयर है, जो लाइव लेयर है, वहां पर फंगस रहती है। इसीलिए जब आप कोई भी क्रीम लगाते हैं, कोई भी एंटी फंगल क्रीम लगाते हैं, तो शुरू के 2-4 दिन आप लगाते हैं, आपको लगता है कि वो 10-12 दिन तक एवरीथिंग इज फाइन, फिर वो दोबारा आ गया, बिकॉज वो नीचे से इन्फेक्शन दोबारा आ जाता है। यही गलती है कि पीपल डोंट डू द ट्रीटमेंट इनफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्किन का जो टर्नओवर है वो 30 दिन है, 30 डेज। तो अगर आप इन्फेक्शन के पीछे 30 दिन तक नहीं भागेंगे तो वो 2 दिन में यू विल फील इट इज गॉन, but it will come back. And I must add over here, because normally what happens is people, there are very common medicines which my parents used to use, by the name of ring cutter and ring guard and all these things. They were okay, but the fungus has become resistant to it. Then these days people go to the chemist and buy medicines. Most of those medicines have steroids. So what the steroids do, it reduces the inflammation. वो जो खुजली हो रही होती है, वो जो redness हो रही होती है, उसको वो दबा देता है। बस सिर्फ दबा देता है, खत्म नहीं करता। तो वो वहीं के वहीं दब गया, उसके बाद 10-12 दिन बाद फिर वो दोबारा इन्फेक्शन नीचे से शुरू हो गया। एंड बिकॉज आपने उसे स्टीरॉइड एक तरह का फंगस का खाना हो गया, तो देन इट कम्स बैक विद वेंजेंस। तो मेरे पास डर्मेटोलॉजिस्ट तक तो लोग जब पहुंचते हैं जब वो हाथ से बाहर हो चुका होता है। तो दैट्स अ मिस्टेक एवरीबडी डज। So I always say कि we have become like a supreme court, you know। आप अपने आप लोकल मेडिसिन करते हो, केमिस्ट से लगवाते हो, दादी नानी के नुस्खे करते हो, जब सब जीपी के पास जाते हो, जब सब कुछ फेल हो जाता है, तब हमारा नंबर आता है और तब तक वो इन्फेक्शन। हमारे इस फेसबुक लाइव का सबसे बड़ा अहम मुद्दा यही है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, जो 60-70% इंडियन पॉपुलेशन को होता है, तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए, खाली उसमें एक क्रीम लगा के चलते मत चले जाइए। राइट राइट, वेरी वेल सेड डॉक्टर। डॉक्टर हमें बताइए कि ये कंडीशन तो कंटीजियस है ही, मतलब छूने से फैलने की संभावनाएं रहती है। नहीं, छूने से इसके नहीं अलावा फैलती है, नहीं छूने से नहीं फैलती है, यूज्ड आर्टिकल से फैलती है। अगर घर में आप तौलिया सेम यूज करते हैं, या अगर आप सेम कोम्ब यूज कर रहे हैं, ऐसे अगर मैं तो सारा दिन बैठ के फंगस के पेशेंट देखती हूँ, तो मुझे नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो छूने से आपको लग जाएगा। इट इज मोर ऑफ क्लोज कॉन्टेक्ट एंड यूजिंग द शेयर्ड आर्टिकल्स। The problem is that we all have fungus in us. We don't need to catch it from anywhere. हमें सिर्फ उसकी कंडीशन ग्रो करने की, राइप करनी है, इन द सेंस कि हमें वो माहौल बनाना है। हम अगर अपने गीले कपड़े हम नहा के आए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हमने बगल पोछी, पैर पोछे और कपड़े पहन लिए, या किसी दिन बारिश में भीग गए और उस दिन वो नम कपड़े जो हैं आपने सारा दिन पहन लिए, या आजकल ज्यादातर क्या होता है कि नमी इतनी है कि कपड़े पूरी तरह सूख नहीं पाते हैं, और खासकर अंडरगारमेंट्स एक हल्की सी नमी रह जाती है, एंड दे आर इन द क्लोजेस्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द स्किन। सो अगर आपने वो माहौल बनाया, तो फंगस तो हम सबके अंदर है। तो वो 2 से 10 फिलामेंट अगर नॉर्मल रहता है, तो आपने माहौल ऐसा बना दिया कि वो 10 से 100 हो गया, 100 से 1000 हो गया। तो कैच करने वाली कहानी बहुत दूर होती है, हम अपने आप उसको ग्रो करने का मौका ज्यादा देते हैं। राइट राइट। डॉक्टर इसके अलावा क्या ये एयरबॉर्न भी हो सकता है? नहीं, एयरबॉर्न नहीं होता है। एयरबॉर्न जो है वो स्पोर्स इतने ज्यादा चाहिए। यू नो, फंगस जो है ना कहीं कोविड के बाद वो इतनी ज्यादा चर्चा हो गई कि देयर वाज अ ब्लैक फंगस, देयर वाज अ येलो फंगस। तो सबको लगता है कि वो फंगस जो है वो एक प्रजाति है, वो एक स्पीशीज नहीं है।
और उस वक्त राइट। भी जो ये येलो और ब्लैक फंगस की कहानी हो रही थी वो इसलिए थी क्योंकि हम लोग की इम्यूनिटी बहुत कम थी और लोग जो ऑक्सीजन ले रहे थे वो ड्राई ऑक्सीजन ले रहे थे। तो आपने वहां पर भी उस येलो और ब्लैक फंगस की, और ऐसा नहीं था कि वो पहली बार आई थी, डर्मेटोलॉजिस्ट तो देखते ही हैं, लेकिन हम ज्यादातर उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में देखते हैं। तो ऐसा नहीं था कि जनरल पॉपुलेशन में वो नजर आ रहा था, पर जनरल पॉपुलेशन ने पहली बार वो नाम सुने तो उसको लगा कि ओहो ये क्या हो गया। तो जो नॉर्मल हम फंगस की बात कर रहे हैं वो स्किन के ऊपर ही होती है, बहुत छोटी सी बहुत आम सी चीज है, लेकिन वो आम जो है अब वो परेशानी का मुद्दा इसलिए बन गई है कि लोग उसका इलाज ठीक से नहीं कर रहे हैं। राइट। राइट। डॉक्टर, चलिए ये तो हमें पता चल गया कि ये कंडीशन एयरबॉर्न नहीं है, बट बताइए हमें कि अगर घर में कोई ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, बिफोर दैट लेट्स नो डॉक्टर, इम्यूनिटी का भी कोई रोल है इसमें कि अगर बिल्कुल लो बिल्कुल इम्यूनिटी बिल्कुल है तो? बिल्कुल। बिकॉज मैं वही बोल रही हूँ ना कि आपके अंदर है, आपके अंदर एक चीज रहती है। तो जब आपकी इम्यूनिटी लो होगी या आपने ऐसा माहौल पैदा किया, नमी में रह रहे हैं, आपने देखा होगा कि घरों में भी जब बरसीलन आ जाती है तो मोल्ड उगने लगता है। तो सीलन जो है वो उसके उगने के लिए एक कंडीशन है ना। तो इम्यूनिटी अगर आपकी लो है, आप सिवियरली डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक का मतलब है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई चल रहा है। तो फंगस का खाना है क्या? यही तो फंगस का खाना है। तो जो आप उसको दे रहे हैं, या तो आप ऊपर से स्टीरॉइड लगा के उसे खाना पहुंचा रहे हैं, या आपके ब्लड में जो शुगर है वो उसको खाना दे रही है, या अगर आपकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट होते हैं या जो इम्यूनोथेरेपी पे होते हैं, या बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी अभी तक बनी ही नहीं है, या बहुत बुजुर्ग हैं जहां पर क्योंकि मल्टीपल को एग्जिस्टिंग चीजें चल रही हैं तो उनकी इम्यूनिटी लो हो गई है। तो जब आपकी लड़ने की ताकत कम हो जाएगी, ये तो हमारा रोज का बैटल है। आई ऑलवेज से इट कि ट्रॉपिक्स में रहने का, जिस तरह के क्लाइमेट में हम रहते हैं, ये हमारा टैक्स है। फंगल इन्फेक्शन, रिपीटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, क्योंकि पसीना रहता है और पसीना रहता है तो उसके, अब डायबिटिक हैं तो पसीना भी जो है उसके अंदर भी शुगर बहुत ज्यादा होती है, तो यही उसके खाने का सबब बन जाता है। फंगस का एक ग्रो करने के लिए आपने कल्चर मीडियम दे दिया। तो अगर आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है तो आपको फंगस का ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे अगर एक नॉर्मल आदमी को एक फंगल पैच हुआ, वो शायद वो फंगल पैच ही रहेगा, आपने कुछ किया या नहीं किया, आपको खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, पर ऐसा नहीं है कि वो दिन दूनी रात चौगनी वो एक पैच से वो पूरे शरीर में फैल जाएगी। लेकिन अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो उसको रोकने का कोई सबब ही नहीं है ना। तो वो फिर एक पैच से पूरे टीनिया, एक नॉर्मल टीनिया रिंगवर्म से वो पूरा टीनिया कॉर्पोरिस बन जाता है, वो पूरा फैल जाता है। तो इसीलिए जो डायबिटिक्स हैं, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, उन्हें वो दे कांट टेक अ चांस। दे कांट से कि हम एक क्रीम लगा के देखते हैं शायद इससे ठीक हो जाए, हम टैल्क लगा के देखते हैं शायद इससे ठीक हो जाए। उन्हें ओरल एंटी फंगल भी लेनी पड़ेगी, उन्हें अपने बॉडी में ड्राइनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ज्यादा नमी ना होने दें। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है? यही तो है कि आप वो इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं जो एक जनरल पॉपुलेशन को परेशान नहीं करता है। राइट। राइट। डॉक्टर, व्हाट अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स? एक घर में बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है कि आप हमेशा प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं, तो क्या वो बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स हम अपना सकते हैं अगर घर पे ऑलरेडी कोई सफर कर रहा है फंगल इन्फेक्शन से? सफर कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको अगर ये प्रिवेंटिव मेजर आपने नहीं लिए तो कभी ना कभी आपको वो इन्फेक्शन परेशान करने ही लगेगा। तो प्रिवेंटिव मेजर, मॉनसून का एक डिक्टम है, ये है कि आप बाहर से अपने आप को ड्राई रखेंगे और अंदर से अपने आप को गीला मतलब हाइड्रेटेड रखेंगे। तो आपकी जो बाहर की स्किन है, खासकर जो स्किन फोल्ड्स हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बिल्कुल छोटे वाले बच्चे हैं जिनको आप डायपर पहना रहे हैं, जिनकी नेक भी क्रीज है, ये भी, जहां भी स्किन की दो क्रीजेस इकट्ठी हो रही हैं तो उसके बीच में पसीना इकट्ठा होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो
बेसिक प्रिकॉशन अगर आपको ये समझ आ जाए कि आपको अपने आप को सूखा रखना है, आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि सुबह जब आप नहा के निकले तो आप सारे अपने क्रीजेस को 5 मिनट लगाएंगे। लोगों के साथ क्या होता है कि टाइम नहीं होता, तो बाथरूम में ही कपड़े पहन के भागे जा रहे हैं या बाल धो के आए, इतना टाइम नहीं है कि आपने बालों को सुखाया, फटाफट चोट, सुबह बच्चों के पास टाइम नहीं होता, गीले बालों की चोटी बांध देते हैं, तो वो नमी अंदर रह जाती है। तो आपको अपने आप को जो बेसिक प्रिकॉशंस है 1 2 3 4 अपने आप को ड्राई रखना है, आपके बॉडी फोल्ड्स को सुखाना है। सुखाने के बाद कोशिश कीजिए कि एक टैल्कम पाउडर, अगर आपके घर में किसी को इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल टैल्कम पाउडर मिलते हैं, घमौरी वाला नहीं चाहिए, जो एंटी फंगल टैल्कम पाउडर मिलते हैं उसको क्रीजेस में लगाइए। और टैल्क का मैं साथ साथ बोलती चलूं, टैल्क को एक बुरी रेपुटेशन मिल गई है, वो गलत है। वो जो रेपुटेशन मिली है वो उन टैल्क्स के लिए है जिसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर्स होते हैं। आप एक नॉर्मल एंटी फंगल टैल्क लीजिए, उसे हाथ पे लीजिए, इस तरह से कीजिए और उसके बाद लगाइए, छिड़किए नहीं। अगर आप टैल्क को छिड़कते हैं तो वो क्रम्स बनाता है। आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए तो वो बेबी पफ होता है जिससे आप टैल्क लगाते हो। बड़े होते राइट। होते हम जो है सिर्फ वो जल्दबाजी में इतने रह जाते हैं कि हम छिड़क के चले जाते हैं। तो आप टैल्क लगाएंगे, उसके बाद आपके जो अंडरगारमेंट जो सबसे करीब आपकी स्किन के रहते हैं उनको हमेशा आयरन करके पहनेंगे। एक चीज मैंने ये देखी कि अब आजकल लोगों के घर में आयरन भी स्टीम आयरन हो गई है, तो अब राइट। आपने सुखाने की जगह उसको और स्टीम कर दिया। यू नो ओवर द इयर्स वी हैव रियलाइज्ड कि हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन और उल्टा काम कर रही है, क्योंकि अब सबके घर में स्टीम आयरन हो गई है। तो जो सूखा भला कपड़ा था वो और आप ड्राई करने उसको सॉगी कर रहे हैं। तो कपड़े आपके सॉगी नहीं होने चाहिए, सॉक्स आपके कॉटन के होने चाहिए। अगर आप ऑफिस में लॉन्ग आवर्स बैठते हैं तो आपको बीच में ऐसा वक्त होना चाहिए कि जब आप सॉक्स निकाल के शूज उतार के थोड़ी देर के लिए बैठें ताकि हवा लग सके। तो मकसद यही है कि आप अपनी स्किन को ड्राई रखिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अपने आप को इंटरनली हाइड्रेटेड रखना है। जब आपकी स्किन की हेल्थ नॉर्मल होगी, आपका पानी आपने सही पिया, आप कोल्ड ड्रिंक्स या उस पर ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे हैं। आपको पता है जो मीठी ड्रिंक होती है, जो जिसके अंदर शुगरी लेवल ज्यादा है, वो आपको और डिहाइड्रेट करती है। तो समहाउ हम लोगों की ये टेंडेंसी हो गई कि जब भी वो हुआ तो कुछ प्यास लगी तो एक सोडा या ऐसा कुछ पी लिया। नहीं, हमें आइडियली सॉल्टेड नींबू पानी पीना चाहिए। और अब तो मैंने यंग बच्चों को देखा है थैंकफुली कि वो ओआरएस बहुत पीने लगे हैं, तो बॉटल के अंदर ओआरएस मिला के आप रखिए। तो जब तक आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, फंगस आपको कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगा। राइट, राइट, वेरी वेल सेड। डॉक्टर, ग्रॉइन एरिया में फंगल इन्फेक्शन से हम, आपने ऑलरेडी कहा है अंडरगारमेंट्स बिल्कुल। हमारे वो चीज होते हैं जो बहुत करीब रहते हैं हमारी स्किन के। तो ग्रॉइन एरिया में फंगल इन्फेक्शन होते हुए मैंने काफी लोगों को देखा है, बहुत लोग सफर करते हैं। सबसे ज्यादा कारण क्या वही हो होता सकता है। है इसका? इसका राइट, कारण राइट, यही है राइट। कि आप जो है ये एरिया ऐसा है कि वो कभी एयर भी नहीं होता, मतलब हमेशा वो एक क्लोज रहता है। और उसके साथ साथ जो एक थोड़ा सा प्रिकॉशन जो लेना है, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, तो स्किन एक दूसरे से रगड़ती है। तो यहाँ पर एक जो चीज ध्यान रखनी चाहिए, और जिसको ये प्रॉब्लम रहती है उन्हें ये चेंज अपनी जिंदगी में करना चाहिए कि वी शेप्ड अंडरगारमेंट्स जो होते हैं उनको छोड़ के अगर आप बॉक्सर टाइप के या हाफ पैंट जिस तरह के होते हैं उस तरह के अंडरगारमेंट्स पहनने शुरू करें, तो वो आपके ग्रोइन एरिया में कट नहीं करेगा, तो वो बिल्कुल गड़ेगा नहीं। तो वहां पर ये जैसे मैंने पाउडर की बात की, वो तो करना ही है, अंडरगारमेंट को सूखा रखना है, लेकिन आप टाइप ऑफ अंडरगारमेंट भी चेंज करना चाहिए। बरसात में हमेशा आपको टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए। दूसरी एक कहानी क्या होती है कि लोग जो है 24 घंटे अंडरगारमेंट्स पहन के रहते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज आपका शरीर 24 घंटे बंधने के लिए नहीं बना था। तो कोशिश ये कीजिए कि जब आप घर पे वापस आते हैं तो आप पजामा पहने, हाफ पैंट पहने, थोड़ा सा स्किन को एयरिंग या ब्रीदिंग की जगह मिलनी चाहिए। और इसको राइट। जो है वो हम धोबीज इच जो बोलते हैं, बिकॉज धोबीज इच इसीलिए बोला जाता था कि वहां पर वो जो सौगी रह जाते थे अंडरगारमेंट्स, वो कहीं ना कहीं इरिटेशन करते थे। राइट। बट क्या डॉक्टर पब्लिक टॉयलेट से भी हो सकता है कि स्प्रेड हो फंगल इन्फेक्शन? नहीं, बहुत अनलाइकली है, बिकॉज
फंगस इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि इट विल सर्वाइव ऑन पब्लिक टॉयलेट्स, बल्कि जो स्विमिंग पूल वाले एरियाज होते हैं जहां पर आप नंगे पैर घूम रहे हो, ये गीली जगह पे सर्वाइव करना फंगस ज्यादा पॉसिबल है रादर देन पब्लिक टॉयलेट, बिकॉज वो सीट जो होती है वो फिर भी ड्राई होती है। मतलब इसकी जो फैलने की मंशा है वो ज्यादा गीले माहौल में है। तो स्विमिंग पूल वाले जो एरियाज होते हैं जहां पर सब बिना चप्पल के घूम रहे होते हैं, वो एरिया में फंगस वहां से पैरों में आने की ज्यादा चांसेस होते हैं रादर देन आप ये बोलो कि पब्लिक टॉयलेट से आए। और पब्लिक टॉयलेट में अगर आपको लगता है, आजकल तो पी सेफ के साथ ऐसे स्प्रे वगैरह आ गए हैं कि कोशिश की, और फीमेल्स को ही दिक्कत होती है तो वो कोशिश करें कि वो पब्लिक सीट से कांटेक्ट में आने से पहले अपने लिए इतना ध्यान रखें बेसिकली। राइट राइट। तो मैं उसको वोट ये दे रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक टॉयलेट में यूज कर रहे हैं तो इसलिए आ ही जाएगा, लेकिन ध्यान रखने में कोई नुकसान नहीं है। राइट राइट। इसके अलावा डॉक्टर, क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि कोई फंगल इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, गलत ट्रीटमेंट की वजह से वो फंगस, आपने शुरुआत में ही कहा है आज की रेजिस्टेंस गेन कर लेते हैं आजकल फंगस, फॉर्मेशन अलग होता है, मेडिकेशन चेंज हो जाते हैं समय के साथ, तो क्या ये फंगस फॉर्मेशन चेंज करके कोई और रूप भी ले सकता है? ऐसी भी संभावनाएं हो सकती है? नहीं नहीं, it cannot turn into anything dangerous, it cannot turn into anything cancerous, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर वो जाएगा नहीं, वो जाएगा नहीं। तो वो जो आपको बेसिक इरिटेशन और रेडनेस कर रहा है वो आपको ज्यादा परेशान करती रहेगी, तो वो खुद में एक परेशानी का सबब बन जाता है, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इनटू समथिंग एल्स, वो नहीं होने वाला। अगर आप डायबिटिक हैं और या आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ये हो सकता है कि अगर आपने इन्फेक्शन को ध्यान नहीं दिया या आपने स्टीरॉयड क्रीम्स का इस्तेमाल किया तो उस पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। मतलब फंगस के अंदर कभी पस नहीं होता, लेकिन अगर आपने गलत ट्रीटमेंट इस्तेमाल की या आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो उसमें फंगस के साथ साथ बैक्टीरिया भी वो ग्रो कर सकता है, ये हो सकता है। पर वो बहुत ही निग्लेक्टेड केसेस में होता है। मतलब मुझे लगता है कि एक आम आदमी जो आप और मैं हैं वो शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इग्नोर करते हैं, उसके बाद क्योंकि हमारी आम जिंदगी में वो परेशान करने लगता है, इचिंग होने लगती है, आपको सोशल एम्बेरसमेंट होने लगती है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट सीख कर ही लेते हैं। राइट राइट। डॉक्टर, व्हाट अबाउट बैक्टीरियल इन्फेक्शन? कोई कनेक्शन है फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन? बैक्टीरिया और फंगस का कनेक्शन ये है कि हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया और फंगस का बैलेंस रहता है। तो जब अगर आप एंटी फंगल देते हैं, दिक्कत जब होती है जब आप एंटी फंगल देते हैं तो कभी कभी बैक्टीरिया बढ़ जाता है क्योंकि फंगस कम होने लगता है। तो हम जो है, और खासकर फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, बिकॉज फंगस एक बार फीमेल एनाटमी में चला गया, फीमेल एनाटमी इज वेरी वेट, तो वो फंगस को ग्रो करने के लिए, और पीएच जो है उसका एसिडिक रहता है। तो यहाँ पर जब हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट करते हैं तब हमने काफी बार देखा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन उभर के आ जाता है, बिकॉज हमने फंगस को कम कर दिया तो फंगस बैक्टीरिया को बैलेंस कर रहा था। लेकिन एक के साथ दूसरा हो जाए या एक के होने से दूसरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। राइट राइट। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने पीएच के बारे में कहा है अभी जस्ट नाउ, तो आजकल बड़े ये सब पीएच बैलेंस करने के लिए वॉशेस ये सब यूज होते हैं बहुत ज्यादा। लोग खुद से यूज करने लगते हैं एक्चुअली, सारे एड्स देख के दैट द एरिया विल स्मेल लाइक अ फ्लावर प्रोबेबली, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सो बताइए हमें कि क्या ये सेफ है, रेकमेंडेबल है क्या? देखो क्या हो गया है ना कि ओवर यूज हो गया, मतलब इन द सेंस मैंने जो बोला, मैंने ये बोला कि देयर इज अ बैलेंस ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया। तो अगर आप ज्यादा इंटीमेट वॉश यूज कर रहे हैं या ज्यादा आप एंटीसेप्सिस कर रहे हैं, मतलब इवन जो लोग वो एंटीसेप्टिक सोप का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं, तो वहां पर एक फंगस शायद कम हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो हमें नहीं करना चाहिए। मतलब दिस इज, आई वांट टू कैटेगरिकली से कि आपको इंटीमेट वॉश जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल साबुन पानी, और नॉर्मल साबुन का मतलब एंटीसेप्टिक साबुन नहीं होता है, नॉर्मल साबुन पानी से आप उसको वॉश कीजिए। और अगर वहां पर
फ्लावर सा तो स्मेल नहीं हो सकता, पीएच जो है वो हमेशा एसिडिक रहता है। अगर आपको उसमें यीस्ट की स्मेल आने लगे या दही वाली एक कर्डी स्मेल आने लगे, तो देन यू हैव टू सीक ट्रीटमेंट, बिकॉज इसका मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म का इम्बैलेंस चल रहा है। तो ये बात मैं आज राइट। बोलना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट में कि प्लीज, क्योंकि हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आपको कोई नहीं बताएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई। पीपल ऑलवेज से कि बट सब तो यूज करते हैं, सबको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आपको थोड़ी बताएगा, वो मेरे पास आएगा। तो मैं जो है, जैसे एक नॉर्मल बहुत कॉमन सी ब्रांड है जो सैनिटरी नैपकिन्स की होती है, उन्होंने 2-4 साल पहले अपनी वीव को चेंज कर दिया। तो उस सिंथेटिक वीव होने से इतना ज्यादा इरिटेशन और फंगल इन्फेक्शन होने लगा कि नाउ आई हैव स्टार्टेड रिकमेंडिंग कि आप ये नहीं लीजिए, आप दूसरा जो कॉटन वीव है वो इस्तेमाल कीजिए। तो इट्स नॉट दैट, और ये कम्युनिटी मेडिसिन का हिस्सा होता है कि कम्युनिटी में जब आप चेंजेस देखते हो, तब आपको पता लगता है कि लोगों की आदतें जो बदल रही हैं, उससे इन्फेक्शन क्या किस तरह से अपनी शक्ल चेंज कर रहा है। तो इंटीमेट वॉश कतई नहीं चाहिए, जैसे एंटी पर्सपिरेंट सोप नहीं चाहिए। आपको पसीना आना रोकना नहीं है, आपको पसीना आना उसको सोखना है, रोकना नहीं है। तो इसी तरह एंटीपर्स्पिरेंट जो हमारे डिओड्रेंट्स होते हैं वो नहीं यूज करना है, एंटीपर्स्पिरेंट सोप नहीं यूज करना है, नॉर्मल सा क्लीनिंग करना है। राइट, राइट। एक्चुअली आजकल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऐसे आ गए हैं ना कि पता नहीं कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके चले जाते हैं लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है, देखिए आप लोगों को में जो भी चल रहा है दिस इज नॉट नॉर्मल, ऐसे पहले नहीं होनी डराते चाहिए। हैं, पहले हम्म। डराते हैं और फिर उसका सोल्यूशन देते हैं। तो डरने की राइट, जरूरत नहीं है। हम हमेशा से राइट, हिंदुस्तान में रहे हैं, हम हमेशा से यहाँ पर ह्यूमिडिटी रही है। कोई पहली बार तो सावन आया नहीं है, पहली बार मॉनसून आया नहीं है। अगर आपको राइट। इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। जी, जी, बिल्कुल। डॉक्टर, एक और तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे नेल एरिया में हाँ। दिखता है, नॉर्मली हाउसवाइव्स में पाए जाते हैं। और कहीं न कहीं शायद उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है इस फंगल इन्फेक्शन को, थिंकिंग कि मे बी एजिंग का एक हम्म, दिस इज़ अ साइन ऑफ एजिंग हम्म। प्रोबेबली, या मे बी ज़्यादा काम करना पड़ता है, पानी का कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहता है, तो शायद इसीलिए नेल थिक हो गया है। तो हमें बताइए कि कैसा दिखता है ये फंगल इन्फेक्शन? क्योर अ, हो सकता है क्या? हाँ, नेल फंगस जो है वो एक बिल्कुल अलग कहानी है बॉडी फंगस से। उसकी जो हुँ, स्पीशीज है जो नेल को इन्फेक्ट कर रही है, वो भी बिल्कुल अलग स्पीशीज है फंगस की। तो ऐसा हुँ, नहीं है कि आपको अगर बॉडी पे फंगस हो रहा है या आपको ग्रोइन एरिया में या आपके बालों में इरिटेशन फंगस हो रहा है तो वो आपको नेल में चला जाएगा। वो जो फंगस है वो सिर्फ स्किन पे सर्वाइव कर सकता है, वो नेल के टिश्यू में सर्वाइव नहीं कर सकता है। जो नेल का फंगस राइट, है, नेल फंगस को जैसे आपने बोला कि क्या क्या कहते हैं, तो जैसे टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया पीडिस हम बोल रहे थे, इसको हम ओनाइकोमाइकोसिस कहते हैं। ओनाइको मीन्स ओके, नेल एंड माइकोसिस मीन्स फंगस, पर वो स्पीशीज बिल्कुल अलग है। और ओनाइकोमाइकोसिस जो है वो एक अलग डायग्नोसिस है। आपको अगर लग रहा है कि आपके नेल के कोने से, ज्यादातर कोने से ग्रीनिश सा वो लगने लगता है, यहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ता है कि ज्यादातर जो आप हाउसवाइफ वाली कहानी कह रही है, दैट इज मोर ऑफ पैरोनिकिया, मतलब ये नेल के नीचे वाला एरिया सूजा हुआ रहता है, दर्द रहता हुँ, है, हुँ, लाल रहता हुँ, है। दैट इज बेसिकली अ हाउसवाइफ काइंड ऑफ डर्मेटाइटिस, जो डिटर्जेंट से या फ्रूट जूसेस से या सब्जी के जूस से, जब हम सब्जी ज्यादा काटते हैं तो आलू का जूस, टमाटर, वो सब ये जो नेल का जो फोल्ड है इसके अंदर बैठ जाते हैं और वो इरिटेट करते हैं। जो फंगस होता है वो नीचे से नहीं शुरू होता है, वो हमेशा कोने से शुरू होता है। तो अगर आपको शुभा है, और फंगस ऐसा नहीं है कि एक नेल में हुआ तो वो कल को पूरे नेल में फैल जाएगा, नहीं होता है ऐसा। तो हुँ, हुँ, लेकिन ये जो फंगस है, यहाँ पर जब आप पेडिक्योर और मैनिक्योर कराने जाते हैं पार्लर में, और अगर उनके इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आपके नेल क्लिपिंग हो रही है, जिससे क्यूटिकल को पुश किया जा रहा है, फाइल किया जा रहा है, तो वहां पर उन इंस्ट्रूमेंट्स को अगर सही से स्टरलाइज नहीं किया गया है, वहां से फंगस आने के चांसेस। और ज्यादातर जो ओनाइकोमाइकोसिस होता है, नेल फंगस जो होता है, वो घर से नहीं आता है, वो आपने कहीं बाहर से ही लिया हुआ होता है। तो एक हुँ, उसूल है कि आप जब पार्लर जाएं तो उनको बोलिए कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज करने हैं, आप उसको मेरे सामने, लोग आप जब बोलेंगे ना पार्लर जाके कि ये कर दो, वो बोलेंगे अभी अभी किया था मैम,
तो आप एक बाउल में डिटॉल डाल के वो सारे इंस्ट्रूमेंट को उसमें डिप कराएंगे। और फंगस इतना लबाइल, लबाइल का मतलब है वो इतनी जल्दी मर जाता है कि अगर आपने 5 मिनट भी उन इंस्ट्रूमेंट्स को उसमें डुबा लिया तो वो खत्म हो जाएगा। सो द चांसेस ऑफ एक से दूसरे आने में, पेडिक्योर टब्स होते हैं वो साफ नहीं करते। तो नेल फंगस एक अलग प्रजाति है और नेल फंगस को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। नेल इज अ डेड टिश्यू, इसमें तो कोई ब्लड सर्कुलेशन है नहीं, तो हमें राइट। नेल में दवा पहुंचाने के लिए लॉन्ग टर्म एंटी फंगल देना पड़ता है। तो अब लॉन्ग टर्म की कहानी यह है कि सबको डर लगता है कि भाई इतने दिन दवा खाएंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, और कितने दिन खानी पड़ेगी। देखिए, साइड इफेक्ट को कंट्रोल रखना यही डॉक्टर का सबसे बड़ा काम है, बिकॉज दवा तो आपको चाहिए। तो दवा किस तरह आपको दी जाए कि वो काम आए लेकिन आपको साइड इफेक्ट ना करे, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना होता है, इसीलिए घर बैठ के दवा नहीं खानी होती है। तो हम लोग जो एंटी फंगल सोनाइकोमाइकोसिस के लिए देते हैं वो हम 7 days a month देते हैं, फिर 3 हफ्ते की गैप दे देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा देते हैं। पर ये प्रोसेस लंबा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी नेल में फंगस आ रहा है, नेल टूटने, वो जो एक कहानी होती है ना, जो नेल थिक हो गया और वो एक तरह से चूरा चूरा बन के निकल रहा है, वो फंगस नहीं होता है, वो डिस्ट्रोफी होती है। अच्छा। तो अगर आपको कुछ नेल में लग रहा है तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं। तो डायग्नोसिस जब तक नहीं बनेगा तब तक ट्रीटमेंट करके फायदा नहीं होता है। राइट। स्पीकिंग ऑफ डायग्नोसिस डॉक्टर, हाउ डू वी डायग्नोज आवर पेशेंट्स? जैसे हमारे पास कोई भी ऐसे स्किन कंडीशन लेके आते हैं, आज हम फंगल यही मैनेजमेंट के बारे में ही यही बात कर रहे हमारा जादू है, यही हमारा जादू है। दिस इज द ट्रेन्ड आई, व्हाट वी सी, बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन्ड टू सी इट। हमें दिक्कत जब राइट। होती है जब आप घर पे ना कुछ क्रीम व्रीम लगा के आते हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है। तो नाउ वी हैव टू हाँ। डिड्यूस कि ये क्या था और अब क्या हो गया। और उस नेल के लिए फिर हमारे पास जैसे फंगस, नेल फंगस के लिए ज्यादातर क्योंकि हमें लंबी दवा चलानी होती है तो हमें टेस्ट कराते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट होता है, जहां पर आपके नेल का छोटा सा पीस लेके वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डाल के हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। उससे क्या होता है कि नेल का जो केराटिन है वो खुल जाता है और फंगस के फिलामेंट्स हमें नजर आ जाते हैं, तो स्पोर्स एंड फिलामेंट्स नजर आ जाते हैं। 99% केसेस में एक डर्मेटोलॉजिस्ट जिसके पास आप जाएंगे उसको फंगस को डायग्नोज करने के लिए बहुत चीजें नहीं चाहिए होती है। वेरी वेल। डॉक्टर, ट्रीटमेंट्स के बारे में बताइए। व्हाट आर द करंट ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल? जैसे कि आपने कहा कि एडवांसमेंट बहुत हो गया है आजकल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंगल इन्फेक्शन या फंगल मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो काफी सारे एडवांसमेंट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो किस जी, प्रकार के ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल है करंटली? देखिए, अगर आप आजकल हमारी जो डर्मेटोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है या जब हम 4 फिजिशियंस मिलते हैं तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये फंगस ही होता है, क्योंकि पेशेंट को तो परेशान कर रहा है, डॉक्टरों को उससे ज्यादा परेशान कर रहा है। बिकॉज आप तो बिल्कुल। हमारे पास आ गए, अब हमें ठीक करना है। और कहीं ना कहीं वो जी। फंगस जो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स है उनसे इतना ज्यादा रेजिस्टेंट हो गया है कि वो ट्रीटमेंट पूरी तरह काम नहीं कर पाता है। इसकी दिक्कत ये है कि जो एंटी फंगल मेडिसिन हैं वो लंबा चलती हैं। देखिए, जब आप हम्म। किसी इन्फेक्शन की बात करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक एंटीबायोटिक देता है तो हद बहद 5 दिन का कोर्स दिया जाता है, या बहुत हुआ तो 10 दिन हो गया। बिकॉज जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिसिडल हैं, सिडल का मतलब है वो बैक्टीरिया को मारती हैं। तो आपने 5 दिन की एंटीबायोटिक की, उसने बैक्टीरिया का खात्मा किया, आप आगे निकल गए, सब कुछ ठीक हो गया। एंटी फंगल जितनी दवाएं हैं वो फंगी स्टैटिक हैं, जिसका मतलब है कि वो फंगस को मारती नहीं है, वो फंगस की मल्टीप्लिकेशन को कम करती हैं। तो इसका ओके। मतलब ये है कि जब तक स्किन की जितनी लेयर्स उस फंगस से इन्फेक्टेड हैं, आप वो दवा रेगुलरली नहीं खाएंगे तो वो फंगस नीचे से दोबारा मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा। तो एंटी राइट। फंगल दवाओं का जो रूल है उसे हम रूल ऑफ 2 बोलते हैं। 2 हफ्ते के लिए दिन में 2 बार आपको दवा खानी ही खानी है, कुछ भी हो जाए। और जो हम क्रीम लगाते हैं उसमें भी अगर आपको एक रिंग नजर आ रहा है तो आपको 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मार्जिन वो क्रीम लगानी है, क्योंकि जितना वो नजर आ रहा है उससे ज्यादा वो फंगस है। तो
ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा लंबा चलता है। क्या होता है, जब आप 4-5 दिन दवा खाते हैं ना, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो आपको नजर आने लगती है, फिर आप थोड़े से ढीले हो जाते हैं, फिर डॉक्टर ने आपको 15 दिन बाद बुलाया, आप कहते हैं अब ठीक तो हो गया है, अब क्या जाना है, फीस भी देनी पड़ेगी, दवा भी महंगी है। लेकिन फिर 15 दिन बाद जब वो नीचे से सेल्स की लेयर ऊपर आती है, वो दोबारा आ जाता है। तो बिलीव कीजिए कि दवा देना और दवा को पूरा खिलाना हमारा एक बहुत बड़ा काम बन गया है। मुझे लगता है कि जब तक पेशेंट डर्मेटोलॉजिस्ट तक पहुंचता है ना, वो जीपी से दवा लेके, केमिस्ट के यहाँ से दवा लेके, कुछ ना कुछ आधा अधूरा करके, और क्योंकि ये दवाएं महंगी हैं, तो क्या हुआ है कि आप एक जनरल फिजिशियन के पास या अपने कॉमन डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डोज 200 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे है, वो 100 मिलीग्राम बीडी देता है कि चलो देखते हैं इससे ठीक होता है कि नहीं होता है, बिकॉज वो कॉस्ट कटिंग हो रही है वहां पर। लेकिन उस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आपका सत्यानाश हो जाता है और वो इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है। मुझे कई बार लगता है कि जब पेशेंट आते हैं कि मतलब मेरे को भी देंगे, मैं भी डायग्नोज करूंगी, उसके बाद दवा भी इतनी महंगी है, लेकिन देयर इज नो ऑप्शन। और एक बार जब वो फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल स्किन के अंदर चला जाए, खत्म हो जाए, तो हम लोग एक ग्लाइकोलिक ट्रीटमेंट जैसा होता है, जिसमें हम एक ग्लाइकोलिक एसिड ऊपर से लगाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि वो अंदर जाके जो बिल्कुल 2-4 फिलामेंट रह गए हैं उसको भी खत्म करे। तो फंगस के पीछे थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। नाउ स्पीकिंग ऑफ दैट डॉक्टर, ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में आपने बात किया है, मैंने पहली बार सुना है इस ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में। आई थिंक नॉट मेनी ऑफ देम वुड टॉक अबाउट इट। आजकल हम स्किन में भी ग्लाइकोलिक एसिड, ये डर्मेटोलॉजिस्ट की सीक्रेट है ना, क्योंकि हमारे पास जब आते हैं, जब सब जगह से सताए जा सकते हैं, जा चुके होते हैं, तो नाउ वी हैव टू गिव अ परमानेंट सॉल्यूशन। राइट राइट ना डॉक्टर, ये तो अभी हम आपने बोल ही दिया हमें, तो आपने जब बोल ही दिया है तो हमें बताइए ये ग्लाइकोलिक एसिड का कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कुछ जरूरत है, क्योंकि हम वी यूजुअली यूज ग्लाइकोलिक एसिड ऑन आवर स्किन नाउअडेज, यू नो, नहीं, जो फॉर आप पिगमेंटेशन ग्लाइकोलिक मार्क्स। एसिड यूज कर रहे हैं ना, जो आपको ओवर द काउंटर चीजों, ये जो है एएचए बीएचए एसिड्स होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। ग्लाइकोलिक जो है वो शुगर केन से निकलता है। और केमिकल पील जो आप सुनते हैं ना, जो पील वाली कहानी होती है, जी वो ग्लाइकोलिक जी, ही इस्तेमाल होता है, तो उसकी परसेंटेजेस ओके अलग अलग होती हैं। जो आपको ओके, ओटीसी मिलेगा ना ओवर द काउंटर, वो मिलेगा 2%, 4%। वो हाँ एक्चुअली हाँ, सिर्फ एक स्किन को ग्लो दे रहा है, वो डेड सेल्स को हटा रहा ओके है। जो हम इस्तेमाल ओके। करते हैं वो 25 से 50% करते हैं, और वो आपको मिलेगा भी। इट्स गुड दिस वे, यू नो। मुझे कहीं आई ना कहीं लगता है कि शुक्र है। मेडिकेशंस, जी 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 जी, जो जो है ना, ये आई थिंक पब्लिक के रीच से जितना दूर हो सके उतना बेहतर। मुझे कहीं ना कहीं लगता है हमारे इंडिया में मेडिकेशंस हमें इतनी आसानी से मिल जाती है, बट बाहर अगर आप जाएंगे विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन यू कैन नॉट गेट मेडिकेशंस एनीवेयर। इनफैक्ट इट्स एक्सट्रीमली कॉस्टली, ट्रीटमेंट्स आर वो जो, एक्सट्रीमली हाँ, कॉस्टली। वो भी एक दो धारी तलवार है। वहां पर प्रॉब्लम क्या है, जी वहां कुछ भी नहीं मिलता। तो अब जो है वो राइट, छोटी से छोटी चीज, और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती। तो जी जी डर्मेटोलॉजिस्ट जी, की अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। राइट राइट। पर हम इंडियंस की तो आदत ही बिगड़ गई है। मतलब कहीं भी अगर हम जाए, हमारे यूटिलिटीज के साथ, हमारे नेसेसिटीज के साथ एक मेडिसिन का पैकेट हमेशा साथ में जाता है, क्योंकि हमें सब पता है बुखार में क्या आपको दवाई पता है, लेना है। अभी जी, अभी जो है सारे बच्चे सितंबर में, अगस्त सितंबर में एवरीबडी द सेशंस विल स्टार्ट, तो एवरीबडी जो भी बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हम्म तो मेरी एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन जाती है, जो मैं उनको दे के भेजती हूँ कि हम्म, बेटा वहां पर अगर आपको जरूरत पड़े एंड यू कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, तो अगर आपके पास दवा नहीं होगी तो हाउ विल आई हेल्प यू, और आपको बाहर कुछ मिलेगी राइट नहीं। तो हद राइट। बहद ये होगा कि वो दवा होप करो कि काम ना आए और फेंकनी पड़े, लेकिन ले जाओ। तो ये जो है, और आपको पता है बहुत सारे रिटायरमेंट लोग जो है, मेरी उम्र के लोग अब रिटायर करके दे वांट टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज ऑफ हेल्थ ओनली, बिकॉज वहां पर राइट, हेल्थ सर्विसेज एक्सेसिबल है ही नहीं। तो बिल्कुल वो भी नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी ज्यादा आती है कि आप केमिस्ट के यहाँ जाके सब कुछ ले सकते हैं, और वहां पर दूसरी आती है कि वहां कुछ भी नहीं मिलता। जी जी, पर मुझे लगता है ना हम इंडियन को थोड़ा सा एक सबक की जरूरत है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेट करते करते हमने
इतना अपना हालत खराब कर लिया है कि इसके बाद आप जिसे भी दे रहे हो ये कंडीशन, उनके लिए बहुत खराब हो रहा है। एग्जैक्टली। ये फंगस का स्ट्रेन इतना वर्स्ट हो गया है अभी। सिर्फ आपने शुरुआत में ही कहा कि सिर्फ पेशेंट के लिए ये ट्रबलसम नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ट्रबलसम हो गया है। क्योंकि कितना आप रिसर्च करेंगे, कितना हर दिन आप नया दवाई निकालेंगे, कहाँ से हर लाएंगे बार नई यहाँ दवा? पे। राइट, इट हैज And बिकम medicines are एक्सट्रीमली very डिफिकल्ट। costly. And the medicines are राइट। not cheap. They are very costly. तो अगर आप एक 14 दिन का कोर्स ले रहे हैं तो वो 1000-1200 से कम नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो गरीब आदमी की जो बीमारी थी वो अब अमीर आदमी की बन गई है। तो कहीं ना कहीं जी वो दिक्कत हो गई है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो आज का ये सेशन हम यही कहना चाहेंगे इस सेशन के द्वारा कि आप लोग प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन बंद करें। इवन दो यू नो द मेडिकेशन, अगर आपके पास अपनी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन भी है, उसको लेके मत जाइए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्लीज़ आप जाइए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और फिर से एक बार जाँच करवाइए, थोड़ा-सा पैसा जाएगा इसमें। अगर आप यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, डॉक्टर ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि द सम अमाउंट जो भी आप स्पेंड करना चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप स्पेंड कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ द डे। सो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर इट, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। इसी के साथ आई कैन सी फ्यू क्वेश्चंस कमिंग अप फ्रॉम द व्यूअर्स डॉक्टर। पहला जी। क्वेश्चन आता है रिया की तरफ से, पूछती हैं, क्या रिपीटिंग सॉक्स ट्वाइस इन्फेक्शन हो सकता है? पहली बात तो ये है कि बरसात में रिपीट करने का मतलब ही नहीं बनता। और हुँ, सॉक्स भी आपके कॉटन के सॉक्स होने चाहिए। और बाय चांस अगर ऐसा है कि आपकी यूनिफॉर्म है या कुछ है, आपको रिपीट करना पड़ रहा है, तो शाम को आके उसे सुखाने के लिए डाल दीजिए कम से कम। मतलब उसको वो राइट। लोग क्या करते हैं ना, उसको उतार के जूते के अंदर ही रख के बैठ जाते हैं। तो वो तो आपने हुँ, माहौल वही बना दिया। तो पहली बात तो ना, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर उसको आप सूखा ही सुखा दीजिए। मतलब उसको धो के ना डालें तो कम से कम सूखा सुखा दीजिए, तो कम से कम पसीना निकल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। धूप धूप में रखना चीज़ों को, अपने कपड़ों एग्जैक्टली को exactly. और सन यही ड्राई कहीं करना। हमें बिल्कुल हमें ऐड कर देना चाहिए कि जो यूनिफॉर्म के शूज होते हैं वो ज्यादा बड़ी दिक्कत करते हैं। जैसे बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म हुँ, है या हुँ, आपके वर्कशॉप की यूनिफॉर्म है, तो ज्यादातर वो जूते एक ही होते हैं और आप एक ही पहन रहे हो, उसी में नमी रह रही है। तो आइडियली दो होने चाहिए, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हर संडे आपको अगर धूप निकल रही है तो आप धूप में रखेंगे जूतों को। सन से अच्छा एंटीसेप्टिक कुछ नहीं है। और दूसरा, अगर किसी दिन आपको लग रहा है कि जूते गीले हो गए, मतलब हल्की सी नमी हो गई है बारिश में, कई बार यूर कॉट इन द रेन, तो उसको हेयर ड्रायर से सुखाइए। मकसद जो है सुखाना है। जी, जी। डॉक्टर, अगला सवाल आता है जॉन से, पूछते हैं, डज़ कलरिंग हेयर फ्रीक्वेंटली कॉज़ स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन? नहीं, नहीं। कलर और फंगल इन्फेक्शन का कोई लेना-देना नहीं है। फंगल हुँ, इन्फेक्शन इज़ बिकॉज़ ऑफ स्वेट। तो अगर आप जिम से आए या बाहर से आए या किचन में काम करके आए और आपने अपने बालों को सुखाया नहीं। मैं ये कहती हूँ कि जब आप बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, आप जिम से, तो बाल खोल के उसको कूलर या एसी में बैठना चाहिए, ताकि वो जो पसीना आपकी जड़ों में आ गया है वो सूख जाए। तो मकसद स्कैल्प को सुखाना है, कलरिंग से कोई लेना-देना नहीं है। राइट। और आज का आखिरी सवाल आता है डॉक्टर लकी से, पूछते हैं, डॉक्टर, मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, अभी तो घर से बाहर नहीं जा पा रहा, क्या उसे कवर करके बाहर जा सकता हूँ? अम, ऐसा फंगल इन्फेक्शन कौन सा हो गया? कवर करके जाएंगे तो आप वहां पर ह्यूमिडिटी का माहौल और ज्यादा बना रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ हुँ, कि आपको एयर करना है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अंडरगारमेंट्स भी रात को चेंज कीजिए, पजामा पहनिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि वी शेप्ड अंडरगारमेंट से आप एक बॉक्सर पे आ जाइए। तो अगर आप कवर करेंगे तो आप तो उसे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं या नहीं, आजकल तो हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट, आजकल तो आफत ये हो गई है कि ऑनलाइन में ही लोगों का जो है, लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, उससे निजात नहीं मिलती है। तो आपका जो डॉक्टर है उसको आप अगर फोटो खींच के भेजेंगे और वो बात करेगा, अगर उसे लगेगा कि फंगस है, ट्रीट तो करना पड़ेगा। छुपा के जाने से काम नहीं चलेगा।
राइट, राइट। वेल डॉक्टर, इट वाज़ अ वंडरफुल डिस्कशन विथ यू टुडे। मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं ये सेशन एंड करूँ, बट अफ़सोस कि हम बहुत ही कम वक़्त लेके आए थे। डॉक्टर, बिफोर वी टेक अ लीव, एनी टेक होम मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स हू हैज़ वॉच्ड अस या सो फार? टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका काम ऐसा है कि उसमें पसीना ज्यादा रहता है अंडर, या आप उनमें से हैं जिसको पसीना ज्यादा आता है, तो बाजार में एंटी फंगल सोप्स मिलते हैं, एंटी फंगल पाउडर मिलता है। नहाते हुए, पूरा नहाने को नहीं बोल रही हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा बॉडी ड्राई हो जाएगी, जो आपके बॉडी फोल्ड्स हैं, अंडर आर्म है, अंडर द ब्रेस्ट है, जांग है, उसको आप एंटी फंगल सोप से इस्तेमाल करें। उसके बाद एक टैल्क को डाल के रखें, और यूनिफॉर्म अगर आपकी थोड़ी सी उसमें सिंथेटिक है तो उसके साथ फिर आप वेस्ट, बनियान या कॉटन के जो अंडरगारमेंट्स हैं वो पहने। मकसद सारा यही है कि आपका जो पसीना आ रहा है, पसीना आना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमारी हुँ। बॉडी को ठंडा रखता है। तो जो पसीना आ रहा है वो सोखता चला जाए, वो स्किन के ऊपर ना रहे और उस फंगस को ग्रो करने का मौका ना मिले। Very well. That was the expert advice for today, and that was Dr. Shehla Agarwal for us. Thank you so much, थैंक Doctor, यू once सो again मच, for थैंक your यू सो valuable मच। time. It has been quite an informative session for our viewers today, and we look forward to many more such sessions in coming time. Also, thank you, viewers, for your excellent participation. For more information and updates, stay connected on our Facebook page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. You all stay safe and stay healthy.